Good morning, children. How are you all? Welcome back to our English class, children. I hope you all are fine at your home. Okay, we were on lesson 6, right? Yesterday we did reading and today we will do its word meanings and question answers. So before starting word meanings and question answers, shall we revise the lesson? What was the lesson all about? Yes, children? So let's start. So children, this is a story about a shoemaker and elves. Elves, yes, like yesterday also I told you that small people with some magical powers. So the shoemaker was very honest and hardworking, right? And the elves helped him making his shoes, and in return he gave them new clothes. They had very dirty and torn clothes, and because of their help the shoemaker became rich. And when he became rich, in return he silently gave them new clothes, like they silently helped him. मतलब बिना कुछ कहे, जैसे उन्होंने elves ने help the shoemaker, likewise the shoemaker helped the elves silently without saying anything. मतलब बिना कुछ कहे उसने भी इन रिटर्न उनकी मदद की. तो सबसे फर्स्ट थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन इज दैट वी शुड हेल्प ईच अदर अनकंडीशनली. मतलब बिना अपने किसी स्वार्थ के हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, राइट चिल्ड्रन? फर्स्ट थिंग दिस. सेकेंड, इफ वी आर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, वन डे आर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी पेज. मतलब अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं और मेहनती हैं तो एक दिन हमारी मेहनत और सच्चाई जरूर रंग ला के देती है, हमारी मेहनत जरूर कामयाब होती है. ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट वी विल डू इट्स क्वेश्चन वर्ड मीनिंग्स. आप नोटबुक में क्या करेंगे चिल्ड्रन? यू विल राइट द लेसन नेम लाइक दिस एंड देन राइट वर्ड एंड मीनिंग. Word and meaning. You will write like this. The first word meaning is taken aback. And its meaning is very surprised. Then our second word meaning is humble. So it has children, this has only two word meanings. Okay, now we shall start our question answers. Our question 1 is, when the shoemaker was able to save some money what did he buy? Means when the shoemaker was able to save some money, what did he buy? जब वो shoemaker कुछ पैसे बचा पाया तो उसने उनसे क्या खरीदा? What did he purchase? He purchased a piece of leather. So हम क्वेश्चन में से ही आंसर लेंगे चिल्ड्रन. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे.
when the shoemaker was able to save some money what did he buy? तो अब जिन्होंने डिड लिखा है इसलिए इन्होंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया क्योंकि डिड पास्ट टेंस में होता है, तो हम बाय की जगह क्या कर देंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, हम बॉट कर देंगे. सो ही बॉट अ पीस ऑफ लेदर. हियर वी विल डू राइट क्वेश्चन मार्क. ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है. नाउ वी विल राइट हियर ही बॉट अ पीस ऑफ लेदर. तू तो और ऐसे चला. He bought a piece of leather. Now see question number 2. Who saw the shoes in the window? वो शूज जो है विंडो पर, वो शूज किसने देखे थे? ओके, तो now see who saw the shoes in the window. Who saw the shoes in the window? Now see, answer you will write here children. Who saw the shoes मतलब वो शूज विंडो पे किसने देखे थे? A rich merchant, एक अमीर व्यापारी ने वो देखे थे. A rich merchant saw the shoes in the window. In the window. Now see question number 3. Question number 3 is, how did the shoemaker and his wife find out who was helping them? Now children, question is, how did the shoemaker and his wife find out who was helping them? shoemaker और उनकी वाइफ ने कैसे पता लगाया कि उनकी हेल्प कौन कर रहा था? तो what did they do? They hid behind the curtain. वो जो पर्दा था, जो उस वर्क रूम में जो पर्दा था, उसके पीछे वो खड़े हो गए चुपचाप, बिना आवाज के, और चुपचाप वहां खड़े देखते रहे कि कौन उनकी हेल्प कर रहा है. राइट चिल्ड्रन? सो हम यहां से ही आंसर अपना स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन.
द shoemaker and his wife. अब चिल्ड्रन डिड लिखा है इसलिए इधर फाइंड लिखा है, तो हम डिड तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह फाउंड. द shoemaker and his wife found out. हाउ लिखे तो हम लिख देंगे बाय हाइडिंग behind the curtain of the workroom. Now come to question number 4. What were the elves wearing? What were the elves wearing? What were the elves wearing? उन elves ने क्या पहन रखा था? तो उन elves ने क्या पहना था चिल्ड्रन? They wore very dirty and torn clothes. उन्होंने बहुत ही गंदे और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे. तो मैं ऐसे लिखेंगे चिल्ड्रन, ये वर्ड हम यहां लगा देंगे द वर वेयरिंग dirty and torn clothes. Torn clothes. Now come to question number 5. What did the elves find on their last night? What did the elves find on their last night? अपनी लास्ट नाइट को उनको क्या मिला? उनको लेदर पीस की जगह क्या मिला? पेयर ऑफ 2 new sets of clothes. So again we will take the answer from question only. The elves फाउंड कर देंगे चिल्ड्रन. डिड है इसलिए फाइंड लिखा है, डिड तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम इसका फाइंड क्या कर देंगे? फाउंड. द एल्व्स फाउंड 2 new
on their last night. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन, हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं आंसर। ऑन देयर लास्ट नाइट on their last night the elves found two new sets of clothes. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट आर मीनिंग इज टेकन अबैक, मीन्स वेरी सरप्राइज। जब हम हैरानी से एकदम बहुत हैरान हो जाते हैं, एकदम चौकन्ने रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेकन अबैक। देन हम्बल, हम्बल मीन्स सिंपल, बहुत सादा। Now question number 1, when the shoemaker was able to save money, what did he buy? जब वो थोड़े बहुत पैसे बचा सका तो उस शू मेकर ने उन पैसों से क्या खरीदा? Now when the shoemaker was able to save money, he bought a piece of leather. वो क्या लेके आया? A piece of leather. Who saw the shoes in the window? वो जो शूज थे विंडो पे किसने देखे थे? सो अ रिच मर्चेंट सॉ द शूज इन द विंडो। मर्चेंट हम कहते हैं व्यापारी को चिल्ड्रन, जो सामान का बेचता है और खरीदता है, ठीक है। तो ऐसे ही अमीर मर्चेंट ने, ऐसे व्यापारी ने, व्यापारी क्या करता है चिल्ड्रन? ही वो सामान देता है और पैसे लेता है, राइट? पैसे देता है, सामान लेता है। तो अ रिच मर्चेंट सॉ द शूज इन द विंडो, और वो विंडो पर एक रिच आदमी ने देखे थे। हाउ डिड द शूमेकर एंड हिज वाइफ फाइंड आउट हु वॉज हेल्पिंग देम? ये हाउ डिड द शूमेकर एंड हिज वाइफ फाइंड आउट हु वॉज हेल्पिंग देम, वो शूमेकर और उसकी वाइफ ने कैसे पता लगाया कि उनकी हेल्प कौन कर रहा है? द शूमेकर एंड हिज वाइफ फाउंड आउट बाय हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन ऑफ द वर्क रूम। अब वो सब चीज चिल्ड्रन अपनी वर्क रूम की टेबल पर सब छोड़ के जाता था, रेडी करके जाता था। लेदर भी, जो उसको सामान चाहिए, सब कुछ कट करके सिर्फ उसको सुबह सिलना होता था, शूज ठीक करने होते थे। नाउ अब उन्होंने कैसे पता लगाया कि उनकी हेल्प कौन कर रहा है? तो शूमेकर और उसकी वाइफ जो है, जो वो वर्क रूम था जहां वो काम करता था, ये शूज बनाता था, वहां पर पर्दे के पीछे खड़े हो गए। एंड दे डिसाइडेड दैट टुडे वी विल वॉच हु ऑल कम्स। ओके चिल्ड्रन, सो हियर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट वर द एल्व्स वेयरिंग? उन एल्व्स ने क्या पहन रखा था? तो उन्होंने बहुत ही गंदे और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। सो एल्व्स वर वियरिंग डर्टी एंड टॉर्न क्लोथ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द एल्व्स फाइंड ऑन देयर लास्ट नाइट? जो उनकी आखिरी रात थी वहां पर, तो उसके बदले में जैसे इन्होंने कहा है कि व्हाट डिड दे फाइंड ऑन देयर लास्ट नाइट, तो टीवी बंद करके, वहां से हटा के इन्होंने अपने एल्व्स को क्या दिया एज अ टोकन ऑफ थैंक यू? वो ये था कि इन्होंने ऑन देयर लास्ट नाइट द एल्व्स फाउंड 2 न्यू सेट्स ऑफ क्लोथ।
तो ऑन द लास्ट नाइट द एल्स फाउंड 2 न्यू सेट्स ऑफ क्लोथ्स. उनको क्या दिखा था चिल्ड्रन? उस दिन उनके लिए लेदर नहीं था, ना ही लेदर का सामान था. दे फाउंड 2 न्यू सेट्स ऑफ क्लोथ्स. Okay children, so these are our question answers which you have to do in your fair notebook and your word meanings also. Okay, after that nobody will say कि मैम मैंने नहीं किया. Why children? There is no excuse. So you have to do these in your fair notebook. So, and children, one thing I would like to say that this story is very interesting. बहुत अच्छी स्टोरी. आप इसको YouTube पे सर्च करोगे तो फिर आपको बहुत सारी कहानियां दिखेगी. एंड देन देयर इज अ साइट कॉल्ड तो ये हम 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर फेयर नोटबुक एंड दीज 2 वर्ड मीनिंग्स 2 ही है. सो यू हैव टू लर्न देम and then you have to write them in your fair notebook. All these 5 question answers and 2 word meanings. Children, if you don't know the meaning of any of the word, you can please mail me or text me about the single word. Okay? Single word वैसे तो मैं I don't allow that कोई ऐसे पूछे, but still you have any problem you can ask me on phone. And okay children, word meanings we have done, question answers we have done, and I would like to say that if you don't know the meaning of any of the line or word in which you have written something for me. ओके नाउ सी ये हाँ इस लेसन में आपको किसी एक वर्ड मीनिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं आता, सो यू कैन आस्क मी. ओके, आप लाइव क्लास में चिल्ड्रन यू कैन आस्क मी कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इफ नीडेड आई विल डू राइट इट इन वर्ड मीनिंग्स. अगर जरूरत पड़ी तो चिल्ड्रन वी विल राइट इट इन word meanings if you don't know the meaning of any of the lesson. Okay children.